نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آپ اگر اپنی بچیوں کا رشتہ کریں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ کریں، تو میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ صرف آپ مال و دولت دیکھ کر رشتہ نہ کریں، صرف گاڑی گھوڑے دیکھ کر رشتہ نہ کریں، صرف زمین جائیداد دیکھ کر نکاح نہ کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی خوش رہے، اس کی زندگی خوشحال ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے دین کی بھی تیاری کریں۔ یہ خیال تو آپ دنیا کے لیے رکھتی ہیں، یہ مال دولت زمین جائیداد یہ سب تو دنیا میں ہی رہ جانے والی چیزیں ہیں، آپ نے اس کی آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنی لڑکیوں کا رشتہ ڈھونڈیں، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں، تو آپ دیندار شخص کو ڈھونڈیں، ایسا بندہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ ایسا بندہ تلاش کریں جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے، لوگوں کا بھی حق ادا کرے۔ ایک دیندار نیک مرد تلاش کریں جو کہ پیارے نبی کا کلمہ بھی پڑھنے والا ہو اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا بھی ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو سن کر کے آپ کے دلوں پر اثر ہو اور آپ سمجھ سکے کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت، بادشاہ کی لڑکی۔ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، کرمان کے بادشاہ۔ شکار کا ان کو بہت شوق تھا۔ ایک دن شکار کرنے کے لیے نکلے، کوئی اللہ کا فقیر مل گیا۔ اللہ کے فقیر نے کان میں کہہ دیا کہ بادشاہ، اسی لیے دنیا میں آئے ہو کہ شکار کرتے رہو گے؟ تمہیں مرنا نہیں ہے؟ اب ہم لوگوں میں اور اللہ والوں میں فرق تو یہی ہے کہ ہم لوگ ڈیڑھ دو گھنٹے چیخ چیخ کر پکاریں، بولیں کہ ہمارے گلے بیٹھ جائیں، لیکن کسی کی زندگی نہیں بدلتی۔ لیکن اللہ والوں کا ایک جملہ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ انہوں نے کان میں آ کر کہا کہ بادشاہ، مرنا نہیں ہے، شکار کے لیے آئے ہو؟ کاش کہ میرا بھی یہ جملہ کسی کے دل پر اثر کر جائے۔ نماز کے وقت میں گھروں میں بیٹھنے والوں، مرنا نہیں ہے؟ تاش کے پتے کھیلنے والوں، مرنا نہیں ہے؟ داڑھیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، مرنا نہیں ہے؟ لڑکیوں پر گندی نظر ڈالنے والوں، مرنا نہیں ہے؟ دوسروں کے گھروں میں جھگڑے لگانے والیوں، کیا مرنا نہیں ہے؟ اپنے بھائی اور بہن کی چگلی کرنے والیوں، مرنا نہیں ہے؟ قبر کی تنگ اور تاریک وادی کو کیسے بھول گئے؟ اپنے نرم گدوں پر ٹینشن کی وجہ سے آپ سو نہیں پاتے تو کہتے ہو کہ میرا سکون غارت ہو گیا ہے۔ کل جب گناہوں کی آگ قبر میں بھڑکائی جائے گی تو وہاں کس کو مدد کے لیے بلاؤ گے؟ اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کر تھوڑی دیر تو آرام سے سو جاتے ہو، قبر میں کون سی نیند کی گولیاں لاؤ گے؟ یہاں پر تھک جاتے ہو تو خودکشی کر کے سکون تلاش کرتے ہو، وہاں کون سی خودکشی کرو گے؟ حالانکہ خودکشی کرنا دنیا میں بھی حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، مرنا ہے، ضرور مرنا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، مت کرو ظلم کسی کے اوپر، مت کرو ظلم اپنے آپ پر۔ ایک رات وہ ضرور آئے گی، عیاشیوں میں رت جگہ کرنے والوں، یہ بھی سوچ لینا کہ قبر میں بھی پہلی رات آنی ہے۔ نرم گدوں میں لیٹ کر گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا کہ ایسی قبر میں بھی رات آنے والی ہے، اور ایسے قبر میں سونا ہے کہ جس میں بستر بھی نہیں، جس میں تکیے بھی نہیں، اتنے آرام بھی نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جس میں کروٹ بدلنے کی جگہ تک نہیں ہوگی۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا، زندگی کا مقصد سمجھ لیا، تو پھر قبر اتنی بڑی ہوگی، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کا بستر بچھا کر سلا دیا جائے گا۔ آؤ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، یہ دنیا مسافر کی طرح، یہ دنیا قیام گاہ نہیں، یہ دنیا سرائے فانی کی طرح ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अय्याशी और आवारगी कब तक करते रहोगे? एक दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। आवारगी मत करो, मौत आनी है। दौलत के नशे में अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करो, मौत आनी है। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने गज़लें सुनने वालों, मटकने वालों, जवानी हमेशा नहीं रहेगी। जवानी उसी को कहते हैं जो आकर के धोखा दे करके चली जाती है। जवानी में पाप मत करो, अल्लाह को नाराज़ मत करो। जवानी का टाइम पाप के लिए नहीं, रब को राज़ी करने के लिए है, रब की इबादत करने के लिए है, रब की इबादत करने के लिए है। आओ उसको मना लें, उसको राज़ी कर लें। बहरहाल अल्लाह करे किसी के दिल पर मेरी बात उतर जाए, मेरी बात असर कर जाए। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह, ऐ शाह किरमान, क्या तुझे मौत नहीं आएगी? बस एक जुमले ने दिल उचाट कर दिया। कमान फेंकी, घोड़े पर सवार होकर के आए। छोटे भाई को कहा कि आज से बादशाहत तुम्हारी, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो लोग कितने अच्छे थे, उस दौर के लोग कितने अच्छे थे। छोटे भाई ने कहा, भैया अगर आप मसरूफ हो गए हैं, अगर आप किसी काम में मसरूफ हो गए हैं तो मैं आपकी जिम्मेदारी संभाल लूंगा, लेकिन बादशाहत आप ना छोड़ें। कहा, मैंने फैसला कर लिया है, तुम बादशाह होगे, मैं नहीं। कपड़े भी दे दिए। तो कहा, अच्छा ठीक है, आप जा रहे हैं जाएं, लेकिन भाभी को और भतीजी को मत लेकर जाएं। देखो ये 4 साल की गुड़िया कितनी खूबसूरत है, आपकी बेटी। आप जाओगे जंगलों में, बयाबान में, इसका क्या होगा? बादशाह ने कहा, नहीं, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो अपने बीवी बच्चों के लिए भी पसंद करता हूँ। अब रही बात तुम्हारी, अगर तुम्हारा यही शौक है तो मैं अपनी बीवी से पूछ लेता हूँ। आओ अपनी भाभी के साथ, जिसे यार का पता मिल जाता है और ये दुनिया और दुनिया की दौलत उसके नज़र में मिट्टी के बराबर हो जाती है। फिर वो तो ये कहता है कि हुजूर जब आपका पता मिल गया, हुजूर जब आपका पता मिल गया, मुझे आबे कौसर से क्या मतलब। वो जामे कौसर की तरफ भी तकने की बात नहीं करता। तो वो तो यूं कहता है कि कौसर की जानिब हम नहीं तकबे, कौसर की जानिब हम नहीं तकबे, हमें देहन नैनन का जाम प्यारे नबी। बल्कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने यहाँ तक कह दिया कि शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। फिर जामे कौसर की परवाह नहीं। अगर यार से दिल लग गया तो उसके लिए जाम क्या, उसके लिए बाग क्या। फिर वो तो ये कहता है कि शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। ये इश्क का मामला है। कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे यार की लगन लग गई है, किसी ने रिश्ते बंधन में मुझे बांध लिया है। यार के रिश्ते में मैं बंध गया हूँ और मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। चलना है या यहीं रुकना है? रहना चाहती हो तो रहो, अपने देवर के पास बहुत इज्जत से रहोगी। बीवी ने कहा कि मैं बीवी हूँ, बीवी, और बीवी की तारीफ यही है कि बीवी सुख और दुख की साथी होती है। वो फाहिशा होती है जो सुख की साथी होती है, दुख की नहीं। बीवी सुख और दुख दोनों की साथी होती है। जब मैंने तुम्हारे साथ लज्जतें उठाई हैं महल में, तो झोपड़ी की तकलीफें भी उठाऊंगी। मुझे इससे ज्यादा राहत शौहर के साथ मिलेगी। चलने को तैयार हूँ। वो वहाँ चले गए। मियाँ और बीवी ने मिलकर बेटी की खूब अच्छी परवरिश की, बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया और वो जवान हो गई। यहाँ तक कि शाह किरमान का भाई जो कि बादशाह बना था, उसका इंतकाल हो गया और इन लोगों को खबर भी नहीं मिली, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि बादशाह कहाँ रहता है। एक दिन बादशाह का भतीजा, उसके भाई का बेटा, जिसके भाई का इंतकाल हो गया था और खबर तक नहीं मिली थी, पता ही नहीं था कि बादशाह कहाँ है, शाह किरमान कहाँ है। इंतकाल हो गया भाई का, भतीजा बादशाह बन गया। शिकार के लिए आया, झोपड़ी देखी, इजाजत लेकर के अंदर गया तो पहचान लिया कि यही चची और चचा हैं। बहन को देखा, लेकिन जैसे ही जवान बहन पर नजर पड़ी, चची की बेटी पर नजर पड़ी, सोचा अरे ये तो जवान हो गई है, मेरी भी शादी नहीं हुई, क्यों न चचा से हाथ मांग लिया जाए। हिम्मत ना हुई तो इस तरह कहा कि चचा, आपके भाई का इंतकाल हो गया, बादशाहत फिर आपकी तरफ देने को तैयार हूँ,
लेकिन आपको अब मैं इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगा, आप महल चले। कहा बेटा इस झोपड़ी में रहने की लज्जत अगर तुझे भी मिल जाए, यार के प्यार के साथ रहने की लज्जत का तुझे अगर पता चल जाए तो तू भी यहीं आ जाए। लेकिन वो नहीं माना तो उन्होंने भी कह दिया कि हम नहीं आते। बहरहाल उस लड़के की हिम्मत ना हुई तो फिर उसने माँ को भेजा, अपनी माँ से कह करके भेजा कि मुझे उसका हाथ चाहिए। माँ ने सीधे कहा कि आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है। मेरा बेटा और आपकी बेटी दोनों एक ही दादा की औलाद हैं, चचा के रिश्ते से एक दूसरे के भाई बहन भी हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरेगी। इस झोपड़ी से निकाल कर बेटी को दोबारा महल में भेज दें। उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद आना, सोचूंगा उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। उन शेख ने 3 दिन शाह किरमान ने 3 दिन की मोहलत मांगी। अब जरा ध्यान दे, खास तौर पर मेरी बहनें और बच्चियां ध्यान दे कि शेख किरमान ने सोचा कि क्या करूं। तो जिस मस्जिद में वो नमाज के लिए जाते थे उस मस्जिद का मौज़िन बड़ा नेक था। उसके पास गए और कहा बेटे शादी करोगे? कहा हुजूर मेरा तो कोई घर नहीं, मैं क्या शादी करूंगा। 2 रोटी खाता हूँ, सुबह शाम खा लेता हूँ, रात दिन अल्लाह अल्लाह किया करता हूँ, मस्जिद से निकलता हूँ 2 रोटी कमाने के लिए, मेरी शादी कैसे होगी। कहा बेटे अगर चाहो तो हो सकती है। उसने कहा कि मेरी बेटी है। कहा हजरत आपकी बेटी महल में पली बड़ी है, अगरचे आप आज कहीं और रहते हैं, आपका मिजाज कुछ और हो गया है, लेकिन उसका मिजाज ऊंचा होगा, वो बर्दाश्त ना कर सकेगी। कहा सुन अगर तू चाहता है तो मेरी बेटी का रिश्ता मैं तेरे साथ कर दूंगा। कहा हजरत मखमल में टाट का पेवंद हो जाएगा, निभेगी नहीं। कहा मैं अपनी बेटी को खूब जानता हूँ, बड़ी नेक है, पारसा है, मुत्तकी है, कनाअत है, ज़ुहद है, सब है। मैंने उसको पढ़ाया है बेटा, उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, वो तेरे साथ रहेगी। अल-मुख्तसर 3 दिन के अंदर अंदर निकाह कर दिया गया। अब 3 दिन के बाद जब उनकी भाभी आई तो फिर क्या हुआ ये दास्तान आज रहने दीजिए। असल मौजू ये है कि किराए का मकान लिया मौज़िन के लिए और अपनी बेटी पर दुपट्टा डालकर खुद ही बेटी को उसके घर पहुंचा दिया। मैं समझती हूँ कि 3 दिन के अंदर शादियां हो जाया करती थी, ये मुस्लिम रिवायात थी, लेकिन आज तो हाल ये है कि हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं, साल भर देखने दिखाने का सिलसिला चलता रहता है। और देखने कौन आ रहा है? जो अभी शौहर नहीं बना उसका दोस्त आ रहा है, उसके मामू का बेटा आ रहा है, उसके चचा का बेटा, उसके खालू का बेटा, सब आ रहे हैं लड़की को देखने। अब अगर रिश्ता हो गया तो हो ही गया, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। वो खुद अभी अजनबी ना महरम है, उसके दोस्त आ रहे हैं लड़की को देखने। उन लोगों के सामने तुम अपनी बेटी को कैसे लाकर बिठा देते हो? शर्म नहीं आती? दीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। रोना यही है कि इल्म नहीं है, दीन की मालूमात नहीं है, बस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। जो जितना बड़ा दुनियादार उसकी उतनी इज्जत और अहमियत है, जबकि इस्लाम तो हमें ये दर्स देता है कि अल्लाह के नज़दीक अमीर और गरीब सब बराबर हैं। अगर कोई अफजल हो सकता है, अगर कोई किसी वजह से किसी से बुलंद हो सकता है तो वह इल्म और अमल की बुनियाद पर हो सकता है, ना कि माल और दौलत की बुनियाद पर। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।